السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں دوستو؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج میں پڑھانے جا رہی ہوں اس میں مستق کی قسمیں، یعنی اسم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اور اس پہ ویڈیو بھی بنا کر کے لائی تھی، اور اسم کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا تاکہ سمجھ میں آئے کہ اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی اسم کی معنی کے اعتبار سے الگ ہوتی ہیں، بناوٹ کے اعتبار سے الگ ہوتی ہیں۔ ان سبھی کو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسم کی معنی کے اعتبار سے 2 ہے اور بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ اس میں بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر اور مستق۔ ان سبھی ویڈیو کو بنا چکی ہوں، آپ لوگ سبھی کو دیکھیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب مصدر بھی پڑھا چکی ہوں اور مستق آج پڑھانے جا رہی ہوں۔ اس میں مستق کی 7 قسمیں ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، حاصل مصدر اور اسم معاوضہ۔ یہ سبھی مستق کی قسمیں ہیں۔ ان میں دیکھیے اسم فاعل وہ اسم مستق ہے جو مصدر سے بنے اور کام کرنے والے کو بتائے، جیسے لکھنے والا، پڑھنے والا، سونے والا وغیرہ وغیرہ ہو سکتے ہیں اس میں فاعل میں۔ اور اسم فاعل کی بھی 2 قسمیں ہیں: اسم فاعل قیاسی اور اسم فاعل سماعی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسم فاعل قیاسی، دیکھیے آپ، وہ اسم فاعل ہے جس کے بنانے کا قاعدہ مقرر ہے۔ اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے الف کو لے سے بدل کر لفظ والا بڑھا دیتے ہیں، جیسے لڑنا سے لڑنے والا، کھیلنا سے کھیلنے والا، لکھنا سے لکھنے والا وغیرہ وغیرہ ہو سکتے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے اسم فاعل قیاسی، وہ اسم فاعل ہے جس کے بنانے کا قاعدہ مقرر نہیں ہے بلکہ اہل ہو، زبان کو جس طرح بولنے لگے، جیسے لکڑہارا، اچکا، لٹیرا، گویا، تیراک، کھلاڑی وغیرہ وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ سبھی اسم سماعی ہے۔ اور اسم مفعول دیکھیے، وہ اسم مستق ہے جو مصدر سے بنے اور مفعولی معنی دے، یعنی اس چیز یا اس شخص کو بتائے جس پر کام ختم ہو یا فعل واقع ہو، جیسے لکھا ہوا۔ اسم مفعولی ہے۔ اسم مفعولی کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 2: اسم مفعولی قیاسی اور اسم مفعولی سماعی۔ اسم مفعولی قیاسی کو دیکھیے، وہ اسم مفعول ہے جس کے بنانے کا قاعدہ مقرر ہو۔ قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت نا کو گرا کر اس کے آخر میں الف ہوا یا ہوئی بڑھا دیتے ہیں، جیسے دیکھیے لکھنا سے لکھا ہوا یا لکھی ہوئی۔ یہ اسم مفعولی قیاسی ہے۔ اور اسم مفعولی سماعی کو دیکھیے، وہ اسم ہے جس کے بنانے کا قاعدہ مقرر نہ ہو بلکہ اہل زبان، جیسے بولتے سنا، بولنے لگے، جیسے ادھر کچرا، ادھر ماوا وغیرہ وغیرہ اسم مفعولی سماعی ہے۔ اسم حالیہ دیکھیے، وہ اسم مستق ہے جو مصدر سے بنے اور فاعل یا مفعول کی حالت ظاہر کرے۔ بنانے کا قاعدہ علامت مصدر نا کو ہٹا کر تا یا تا ہوا بڑھا دیتے ہیں، جیسے وہ دوڑتا ہے یا دوڑتا ہوا آیا، آفتاب چمکتا ہوا۔ پہلی مثال میں دوڑتا یا دوڑتا ہوا فاعل کی حالت اور دوسری مثال میں چمکتا ہوا مفعول کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس اسم کی حالت بیان ہو، جس اسم کی حالت کو بیان کریں ہم اسے ذوالحال کہتے ہیں، اور مندرجہ بالا مثالوں میں وہ
और आफताब जुलहाल है। जैसे देखिए वह दौड़ता हुआ आया, इसमें कौन दौड़ रहा है? वह, यानी वह के ज़रिए हमें पता चल रहा है तो जुलहाल कहेंगे। और यहाँ देखिए चमकता हुआ, आफताब चमकता हुआ बता रहा है आफताब को कि आफताब चमकता दिख रहा है, तो जुलहाल होंगे। बाकी सभी हाल होंगे। हाल और जुलहाल में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। और आगे देखिए इसमें ज़र्फ़, वह इसम है जो जगह या वक्त ज़ाहिर करे, जिससे वक्त या ज़माना समझा जाए, वह ज़र्फ़ ज़मान है। वह ज़र्फ़ ज़मान है। आप लोग ज़र्फ़ के बारे में भी पढ़े हैं। ज़र्फ़ की भी कितनी किस्में होती है? 2। ज़र्फ़ की भी 2 किस्में होती हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। और जिससे जगह मालूम हो वह ज़र्फ़ मकान है। जैसे उर्दू में ज़र्फ़ ज़मान बनाने का कोई कायदा नहीं है, बल्कि ऐसे अल्फाज जिनसे वक्त या ज़माना मालूम हो ज़र्फ़ ज़मान समझा जाता है। जैसे देखिए सुबह शाम टहलना सेहत का सबब है, और रात दिन घर में रहता है, मैं आज कोलकाता जाऊंगा। इस जुमले में सुबह शाम, रात दिन और आज ज़र्फ़ ज़मान को दर्शाता है। ज़र्फ़ ज़मान को दर्शाता है। ज़र्फ़ मकान बनाने के चंद तरीके हैं। जैसे ज़र्फ़ मकान में मैं आज स्कूल जाऊंगी, इसमें स्कूल ज़र्फ़ मकान कहलाएगा। मैं मदरसा जाऊंगी, मदरसा यानी ज़र्फ़ मकान कहलाएगा। इसमें आप समझ सकते हैं। जैसे मस्दर, जैसे बैठना से बैठक। और आगे देखिए इसम के आखिर में साला, साल, आल, याल, स्थान, वारी बढ़ाकर इसमें ज़र्फ़ मकान बनाते हैं। जाते हैं, जैसे देखिए पाठशाला, टिकटशाला, साल, ससुराल, दधियाल, समधियाना, देवी स्थान, फुलवारी वगैरह, ये सभी ज़र्फ़ मकान है। आगे देखिए हिंदी लफ्ज़ दान बढ़ाकर इसमें ज़र्फ़ बनाए जाते हैं, दान बढ़ाकर। जैसे पानदान, गुलदान, पिगदान वगैरह वगैरह सभी हिंदी लफ्ज़ का है और ज़र्फ़ मकान में आएंगे। और इसमें आला के बारे में आप देखिए, वह इसमें मुस्तक है जो मस्दर से बने हो और काम ज़रिया आला हो। जैसे नहरनी, अस्तूरा, जैसे चाकू, छुरी, ये सभी इसमें आला है। इसमें आला बनाने की चंद कायदे हैं। देखिए मस्दर की अलामत ना को हटाकर और कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़कर, जैसे कतरना से कतरनी, करना से करनी, झारना से झारन, ये सभी इसमें आला में आएंगे। इसमें जात से, जैसे हाथ से हथौड़ा, दांत से दातून, ये सभी इसमें आला में आएंगे। मस्दर की अलामत ना के अलिफ को गिरा कर, जैसे बेलना से बेलन, ये सभी इसमें आला है। देखिए और आप लोग समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए। इसमें के आखिर में आल यल बढ़ाने से, जैसे घड़ी से घड़ियाल और नाक से नकेल, ये सभी इसमें आला है। 2 इसम से मिलकर, जैसे दस्त पनाह से मस्दर की शक्ल बदलकर, जैसे सीना से सुई, बजाना से बाजा, हासिल मस्दर देखिए वह इसमें मुस्तक है जो मस्दर से बने और इसम के मस्दरी माना पाया जाए। जैसे रोकना से रोक, लूटना से लूट, वगैरह वगैरह हो सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं। हासिल मस्दर बनाने के चंद्र कायदे मंदरजा झेल है। चंद्र कायदे है, अब देख लीजिए इसे भी। मस्दर की अलामत हटाकर, जैसे जीतना से जीत, हारना से हार। मस्दर के आखिर से सिर्फ अलिफ दूर करके, जैसे थकना से थकन, चलना से चलन, ये सभी अलामत है मस्दर की, हासिल मस्दर बनाने की। और तीसरा नंबर में देखिए अलामत मस्दर
दूर करके अलिफ ज़ायद करने से, जैसे झगड़ना से झगड़ा, ये सभी गिरना से गिरा, ये सभी है हासिल मस्दर में आएंगे। और चौथा नंबर अलामत मस्दर दूर करके या याई ज़ायदा करने से, जैसे हंसना से हंसी, लड़ना से लड़ाई, कभी इसे भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इसीलिए गौर से देखिए। और एग्ज़ाम में तो अक्सर पूछते ही हैं, हर एक एग्ज़ाम में, या तो वो टेट वगैरह के हो या फिर मैट्रिक इंटर हो, सभी में 1-2 नंबर पूछेंगे ही। कभी दो उम्र को मिलाकर, जैसे बक बक, रोकथाम, ये सभी। कभी सिफत पुरनहट पन लगाकर, जैसे चौरान, लंबान, चिकनाहट, भोलापन, ये सभी इस्तेमाल करते हैं। कभी दो मुख्तलिफ लफ्ज़ों को मिलाकर, जैसे छानबीन, ये सभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कभी अलामत मस्दर दूर करके लफ्ज़ वट लगाकर, जैसे लगावट, गिरावट, बनावट वगैरह वगैरह हो सकते हैं और देख भी सकते हैं आप। कभी अलामत मस्दर दूर करके लफ्ज़ वा लगाकर, जैसे बुलावा, पहनावा वगैरह वगैरह हो सकते हैं। और 10 नंबर में देखिए अलामत मस्दर ना गिरा कर आखिर में ता बढ़ाकर, जैसे बचना से बचत, ये सभी हासिल मस्दर में हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें मुआवजा देखिए, वह इसमें मुस्तक है जो मस्दर से बने और ज़रत अजरत का माना दे, जैसे सिलाई, रंगाई, धुलाई वगैरह वगैरह मुआवजा है। इसमें मुआवजा बनाने के कायदे मंदरजा झेल देखिए। अलामत मस्दर ना गिरा कर लाई या आई जोड़ देते हैं, जैसे सीना से सिलाई, धोना से धुलाई, रंगना से रंगनाई वगैरह वगैरह हो सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की भी कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए आप लोग। आज मैं इस वीडियो को इसी जगह एंड कर रही हूँ। आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।